A lot of patients come and say that I'm eating healthy, I'm exercising, I go to the gym, but somehow my acne is not going. When you talk about acne, it's a very complex process. So you cannot isolate any acne and say that this is purely hormonal acne or this is purely a non-hormonal acne. अब एक नए एक्ने पेशेंट से मिलते हैं, कैसे उनके रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई करते हैं? So acne is a very complex issue. Figuring out the patterns behind the acne. Acne treatment can begin to show results actually. It takes 3 months. स्किन केयर इंडस्ट्री में क्या ऐसे मिथ्स हैं पेशेंट्स के लिए जो उनको बहुत पीछे ले जाते हैं? Isotretinoin से लोग इतना डर चुके हैं because of a lot of fear mongering that's happened on social media. कुछ एक दो इन्फ्लुएंसर्स ने काफ़ी पोस्ट कर दिया था अबाउट कि इस डॉक्टर ने मुझे PCOS के लिए आइसोट्रेटिनोइन दे दिया. Anything which is like really serious that you've seen on social where everybody needs to be warned, may that be around acne or something else as well? Skincare for a lot of people is actually a part of their self-care routine. What's actually wrong in this is when people are following trends. एक नया स्किन केयर रूटीन है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है अमंग पेशेंट्स और वो है मतलब आपने डायग्नोसिस भी सही बना दी, फिर भी सालों तक उनका एक्ने क्यों नहीं जाता? प्रिस्क्रिप्शंस चेंज करने से और बहुत सारी मेडिसिन कलेक्ट करने से एक्ने ठीक नहीं होगा. उनका एम लाइफ में ये नहीं है कि मुझे अपना बैरियर फिक्स करना है. उनका एम है कि मैं ट्रेटिनोइन कब यूज कर पाऊंगी. एआई की दुनिया में क्या हम फ्यूचर में एक फोन देखकर अपनी स्किन का प्रॉपर डायग्नोसिस बना पाएंगे? आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जिन्होंने हज़ारों प्रोडक्ट्स ट्राई किए, डॉक्टर्स के चक्कर लगाए और फिर भी एक्ने से परेशान है, और उन लोगों के लिए भी है जो इस लूप में फंसे हैं और एक परमानेंट इलाज ढूंढ रहे हैं. हमारी आज की गेस्ट हैं डॉक्टर सोनल मखीजा. शी इज़ एन MD डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑल्सो अ स्पेशलिस्ट इन फंक्शनल डर्मेटोलॉजी. वो स्किन प्रॉब्लम्स को फंक्शनल डर्मेटोलॉजी के प्रिंसिपल्स के थ्रू अप्रोच करती हैं. एक ऐसी अप्रोच जहां स्किन को सिर्फ सुपरफिशियली नहीं बल्कि बॉडी के ओवरऑल हेल्थ के साथ जोड़कर देखा जाता है ताकि प्रॉब्लम बार बार वापस ना आए. आज हम बात करेंगे गट और एक्ने के रियल अनएडिटेड कनेक्शन की, हार्मोनल एक्ने के बारे में जहां ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स फेल हो जाती हैं, और कैसे सोशल मीडिया की वायरल स्किन एडवाइस आपकी स्किन को डैमेज कर रही है. एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो शायद आपकी हीलिंग जर्नी को हमेशा के लिए बदल देगा. आप एक नए एक्ने पेशेंट से मिलते हैं, उनका इनिशियल असेसमेंट क्या होता है, आप कैसे उनके रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई करते हैं? सो जब एक नया पेशेंट आता है मेरे पास, आई follow a sort of 4-step framework for them. First step includes figuring out the patterns behind the acne, location, flares, triggers for their acne that the patient thinks of, a family history of hormonal disorders or any other family history that actually could give us a clue. Moving on, I delve into their lifestyle, whether it is sleep. If they are using a wearable device, I love to see that data. If they are, when it comes to diet, I want to know what they're eating. I want them to have a food diary. I want either a 3-day or a 7-day food diary to actually understand what their diet is, because most of the patients को लगता है कि हम काफ़ी हेल्दी खा रहे हैं, हम घर का खाना खा रहे हैं, हम काफ़ी हेल्दी खा रहे हैं, बट हमारे घर का इंडियन खाना कार्बोहाइड्रेट हैवी है, प्रोटीन में लैक करता है, लॉट ऑफ गुड न्यूट्रिशन में लैक करता है. Thirdly, I ask about the patient's exercise history or fitness. How fit are they? Are they exercising or not? How much are they exercising? When are they exercising? What kind of exercise are they doing? Because all of these things actually give a clue into where we should focus on when we are trying to treat their acne. Suppose कोई patient है जो HIIT training कर रहा है and they're training 6 days a week because they're trying to treat their acne because उनको डॉक्टर ने बोला है that you need to exercise to treat your acne. When you're doing that, actually you are going into a nervous system dysregulation. आप अपना cortisol levels बढ़ा रहे हो, and that could actually be a very big trigger for your acne. Fourthly, if you look into their stress patterns, is the stress about acne, or is acne actually getting induced by stress? What is the source of that stress? Is it coming from their work? Is it coming from their personal relationships? How can we help them or guide them to actually address these issues? जब हम ये patterns कुछ emerge करके आते हैं, then we come up with a plan on
कौन से ब्लड टेस्ट या कौन से इमेजिंग या क्या टेस्ट कराने हैं. इफ़ वी आर सस्पेक्टिंग कि ये PMOS है, और वी आर सस्पेक्टिंग ये थायराइड इशू है, या फिर ये एड्रीनल इशू है, और हो सकता है कि हमें हार्मोनल पैटर्न्स नहीं निकल के आ रहे, एंड वी आर गेटिंग अ क्लियर ट्रिगर विद सर्टन स्किन केयर प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल. या कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाते हैं. कुछ पेशेंट्स में हिस्ट्री होती है स्लगिंग की, जिसकी वजह से एक्ने आ सकते हैं. सो अ लॉट ऑफ डिटेल्ड हिस्ट्री टेकिंग फॉलोड बाय डेल्विंग इनटू देयर लाइफस्टाइल, then tapering their investigations accordingly, and then a prescription which is extremely detailed. It includes a skincare routine, it includes oral medication if it's required, supplements if they are required, investigations for both things, for diagnosis as well as for if you are planning to give a certain medicine, is that medicine safe or not for the patient. So investigations on both those ends. And how long is this journey? So an acne patient typically will even start to show response in about 3 months. So that is where we have to also counsel the patient to not quickly try to switch between using routines or to give up hope on whether something's working or not. Because जब हम उनको explain करते हैं कि ये सब चीज़ें हम treat कर रहे हैं, but actual your root causes, so to say, are coming from your stress, sleep, diet, your exercise, that is when they begin to understand that the power is actually in their hands. And that also gives them an understanding that it is going to be a long-term plan. And there will be flares because acne is a chronic issue at the end of the day. Acne को हम कह दें कि हम इतने वीक्स में या इतने मंथ्स में ठीक कर देते हैं, there is no answer to इतने this. नोन ट्रीटमेंट्स और डायग्नोसिस होने के बाद लोगों को मतलब आपने डायग्नोसिस भी सही बना दी, फिर भी सालों तक उनका एक्ने क्यों नहीं जाता? क्या ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं? क्या वो फैक्टर्स बार बार चेंज हो रहे हैं किसी की बॉडी में और एक्ने जा ही नहीं रहा? आई नो ऑफ समबडी जिसको 6-7 साल तक एक्ने था, फिर उसके बाद 1 साल नहीं हुआ, फिर ट्रिगर किया. नियरली ऑल द एंटायर यूथ शी हैड एक्ने ओवर द फेस और ही हैड एक्ने ओवर द फेस. सो उसको कैसे इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी एक्ने के इश्यूज क्यों नहीं ट्रीट हो पा रहे हैं? So acne is a very complex issue. So acne, if you think about acne क्यों होता है, there are 4 mechanisms. Your oil production बढ़ रहा है, pores are getting clogged, bacteria का infestation होता है which is known as Cutibacterium acnes, and there is local inflammation in that area. We are addressing these issues already with the medications that are there. बट ये चारों चीज़ें मॉड्यूलेट क्या कर रहा है? ये चारों चीज़ें मॉड्यूलेट हो रही हैं विद योर डाइट, विद योर स्लीप, विद योर स्ट्रेस, विद योर लाइफस्टाइल. जिन पेशेंट्स में एक्ने ठीक होके वापस आ रहा है, इट इज़ दोज मॉड्यूलेटिंग फैक्टर्स विच आर करंटली नॉट बीइंग एड्रेस्ड बाय अस. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ समवन हैज़ एक्सेस ऑयल, हमारे प्रिस्क्रिप्शन में उनके लिए सैलिसिलिक एसिड होता है, आइसोट्रेटिनॉइन होता है. उनके पोर्स ब्लॉक्ड हैं, हम उनको रेटिनॉइड्स देते हैं. उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन को टारगेट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, टॉपिकल एंड ओरल एंटीबायोटिक्स देते हैं. इन्फ्लेमेशन अगर बहुत ज़्यादा होती है, इन सर्टन केसेस वी माइट हैव टू पुट सर्टन इंजेक्शंस ऑफ स्टीरॉइड्स इनटू सर्टन सिस्टिक एक्ने एज वेल. सो हम हर वे में ट्राई कर रहे हैं टू एड्रेस ऑल ऑफ दीज कॉजेज, एंड एक्चुअली डर्मेटोलॉजिस्ट आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन डूइंग दैट. सो एक्ने का कोई ट्रीटमेंट नहीं है इज़ एक्चुअली नॉट द राइट थिंग टू से, बिकॉज एक्ने का एक्चुअली बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है. बट व्हाट इज़ लैकिंग और वेयर द गैप कम्स इज़ जो ये 4 चीज़ों को मॉड्यूलेट कर रहा है, वी आर नॉट एड्रेसिंग दैट. और वो हम पेशेंट पे छोड़ रहे हैं कि इन चीज़ों को आप खुद देखिए, अपने स्ट्रेस लेवल्स को, अपनी डाइट को आप खुद देखिए. एंड ना तो हम उनको खुद गाइड कर पा रहे हैं, ना हम उनको सही डायरेक्शन में या सही दिशा दिखा पा रहे हैं. सो आई फील दैट this is why acne is again and again coming back. Triggers यही. So when we talk about root causes, ये कोई बहुत fancy word या कोई ये कोई नई चीज़ें नहीं हैं. Root causes, we have to go back to the basics at the end of the day. Most of the diseases that we suffer from today, chronic diseases that we suffer from today, not just in dermatology, are actually treatable if we just go back to the basics. So स्किन केयर इंडस्ट्री में क्या ऐसे मिथ्स हैं पेशेंट्स के लिए जो उनको बहुत पीछे ले जाते हैं आज की डेट में व्हेन दे अंडरस्टैंड अबाउट एक्ने? आई थिंक सोशल मीडिया ने इस एक मेडिसिन को बिल्कुल डीमोनाइज कर दिया है.
आइसोट्रेटिनॉइन से लोग इतना डर चुके हैं बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फियर मॉन्गरिंग दैट्स हैपेंड ऑन सोशल मीडिया. कुछ एक दो इन्फ्लुएंसर्स ने काफ़ी पोस्ट कर दिया था अबाउट कि इस डॉक्टर ने मुझे PCOS के लिए आइसोट्रेटिनॉइन दे दिया, विच इज़ एंड बिकॉज दे कंसिडर इट कि ये बहुत हैवी दवाई है, या फिर इससे मैंने इसके साइड इफ़ेक्ट्स पढ़े एंड दिस इज़ व्हाट यू नो this is what can happen to me. But isotretinoin actually is the only one evidence-based drug that can prevent scarring. And scarring is actually much harder to treat than acne itself. So, because of this, patients come with that preconceived notion that हमें isotretinoin नहीं लेना है. And a lot of our time as dermatologists goes into explaining to them that as long as you are taking it under the guidance of a dermatologist, as long as we are monitoring you for side effects, as long as we are prescribing it to you, considering you a good candidate for the drug, it is okay to take the drug because we are trying to treat something which otherwise has a long-term scarring as a side effect. So especially in severe acne, when patients are extremely confused about what to do, and we're also putting this fear of the medicines that actually work into them. इसकी वजह से इतने पेशेंट्स को डर्मेटोलॉजिस्ट पे ट्रस्ट उठ रहा है, या फिर दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट मेथड्स बिकॉज दे फील दैट आइसोट्रेटिनॉइन इज़ दिस बिग डीमन ड्रग जो हमें कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स कर देगा. So 100% it requires monitoring. And I don't believe in the term, I don't understand the drug heavy medication first of all, because heavy medication का क्या मतलब है? If as long as the drug has been shown to give you the results in a particular disease and is being monitored by the right practitioner, as long as you are not taking it over the counter, या फिर कि डॉक्टर ने आपको 3 हफ्ते के लिए लिख के दिया है, आपने अपने आप से उसको 6 महीने यूज़ कर लिया है, that is when the problems come in. Otherwise we titrate the dose, we get the test done. अगर हमें कुछ भी गड़बड़ लगती है, we absolutely titrate the dose. And every dermatologist ensures that जो candidate जिसको वो isotretinoin दे रहे हैं, they don't take it lightly. They do make sure that you are a good candidate for it in the first place. So I feel that this fear mongering of isotretinoin needs to stop. आजकल सप्लीमेंट्स का मार्केट वो बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन की तरफ मूव कर चुका है. हर इन्फ्लुएंसर किसी न किसी सप्लीमेंट को प्रमोट कर रहा है. ब्रांड्स आर गेटिंग UGC's वीडियोज़ मेड, दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंसर्स ऑल्सो. डॉक्टर्स भी लगे हुए हैं. क्या सबसे ज़्यादा वर्क करता है और क्या सबसे ज़्यादा ओवर हाइप्ड है एट दिस गिवन पॉइंट इन टाइम, जहाँ पे पेशेंट को समझ ही नहीं आ रहा कि उसको सप्लीमेंट कौन सा लेना है? एक्ने इतना फ्रस्ट्रेटिंग टॉपिक हो चुका है फॉर एन एक्ने पेशेंट दैट दे आर ईजी टारगेट्स फॉर दीज मार्केटिंग कंपनीज. एंड सो these herbal syrups which are claiming to target or to treat your acne, जो आपके चेहरे को साफ़ कर देंगे, और they have claims कि आपके blood purify कर देंगे, they are extremely dangerous. They are overhyped, but more than that, they're extremely dangerous because they are very heavy on heavy metals which can cause toxicity in the liver of the patients. And उसके जो side effects हैं are first of all unknown, in the sense of there is no tangible evidence that we already know. The thing with when we prescribe evidence-based medication, say isotretinoin for example, हमें पता है उसके side effects क्या हैं, किस में देना है और कौन सही candidate रहेगा. But एक blood purifier syrup, what effects that can have on the liver of a patient who's taking it is actually unimaginable. So these are very dangerous new trends of these syrups or even detox juices that people have started to do. That is, and because acne patients are one of the most desperate patients, they're grabbing at every last straw to treat their acne, and so वो बहुत easy targets बन जाते हैं इसके लिए. On the other hand, if I have to talk about the one underrated and one supplement that I would say actually has very good evidence is zinc. So zinc is actually found to be deficient in a lot of the patients that suffer from moderate to severe acne. So zinc supplementation can actually help those patients, and I feel that because zinc at some level is not a very expensive medication,
it's not something that has created a buzz yet. Markets are not talking about zinc as a very as a wonder drug for anything. And when they do, maybe that's when people will pick it up. But until then, I think people should just listen to their dermatologist because they are following what the evidence is telling them to. आजकल यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा स्किन केयर रूटीन्स वायरल हो रहे हैं और मतलब समझ ही नहीं आ रहा इतना कंटेंट है एंड वर्ल्ड ओवर इट्स नॉट जस्ट in our country but universally wherever you go you're seeing so much. I even changed my profiles to check if is this a pattern on my phone, but it's skincare is so much. What is right and what is harmful on the web? How do I differentiate as a viewer or a client or a patient or a prospective person who's trying to understand skincare? What is right? One is that skincare is actually not as serious also. So I feel that skincare for a lot of people is actually a part of their self-care routine. Skincare is always not about fixing something, or it's not always as a medication. But what's actually wrong in this is when people are following trends. One trend is this whole ingredient-based skincare use. Patients just want to use retinol for the sake of it. They want to use niacinamide for the sake of it because that's what everyone's doing on the internet and they feel that you don't want to miss out on it. But when you're doing that, you're actually playing with the barrier, with the skin barrier, which could actually lead to actual skin concerns that you may later face. Indians are very prone to pigmentation for that matter. एक नया स्किन केयर रूटीन है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है among patients और वो है कोरियन स्किन केयर रूटीन. अब कोरियन स्किन केयर रूटीन इंडियन स्किन के लिए इन दिस हीट इस क्लाइमेट में इट कैन एक्चुअली कॉज अ लॉट ऑफ ब्रेकआउट्स क्योंकि आप 10 स्टेप करोगे, आप 4 एसेंसेस लगाओगे, 4 टोनर्स लगाओगे, 4 सीरम्स लगाओगे, 4 टाइप के मॉइस्चराइजर्स और फिर आप सनस्क्रीन लगाओगे, तो ये आपकी स्किन को एक्चुअली क्लॉग कर सकता है एंड इतनी हीट में तो डेफिनेटली एक्ने कर सकता है. तो कोरियन स्किन के प्रोडक्ट्स बुरे नहीं हैं, काफ़ी कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं मार्केट में जिनकी फॉर्मुलेशन काफ़ी अच्छी है. बट ये जो 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन का ट्रेंड आ चुका है ये बहुत ही ज़्यादा बहुत डिफ़िकल्ट है पेशेंट्स को इससे निकालने का. पेशेंट्स जब आप उनको 1 या 2 सीरम्स लिख के देते हैं वो खुश नहीं होते. उनको लगता है कि बट हमें ये भी लिख के दीजिए और इसका बेस्ट ब्रांड लिख के दीजिए. बट हमें समझना दैट स्किन केयर को हमें बैलेंस करके चलना है. ट्रेंड्स के हिसाब से अगर हम चलेंगे क्योंकि स्किन तो ट्रेंड नहीं कर रही है, स्किन आपकी स्किन है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर बॉडी. जिस तरीके से आप अपने लंग हेल्थ या लिवर हेल्थ को ट्रेंड्स के हिसाब से नहीं चलाते हो, स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन, हम उसको क्यों हम ट्रेंड्स पे चला रहे हैं. सो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट है पेशेंट्स एंड पेशेंट्स की भी गलती नहीं है. उनको इतना बम्बार्ड किया जा रहा है जैसे आपने बोला. ऐसा कोई नहीं है जिसके इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब और फेसबुक फिल्ड नहीं है विद ये क्रीम खरीद लो, ये सीरम खरीद लो, इस पे ये डिस्काउंट आ रहा है. आपको इतना एक फोमो में डाल देता है अबाउट मैं ये इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ कर रही. डॉक्टर्स पेशेंट्स आते हैं उनके बैरियर बिल्कुल ख़राब होते हैं, स्किन पील हो रही होगी, बट उनका एम लाइफ में ये नहीं है कि मुझे अपना बैरियर फिक्स करना है. उनका एम है कि मैं ट्रेटिनॉइन कब यूज़ कर पाऊँगी, बिकॉज मुझे ट्रेटिनॉइन यूज़ करना है क्योंकि मेरी एज 35 हो चुकी है और मैंने अब तक शुरू नहीं किया. मैं बहुत पीछे चल रही हूँ अपने स्किन केयर रूटीन में. तो आई थिंक कि हमें अपने स्किन केयर को जस्ट एज वी ट्रीट अदर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी उस तरीके से ही ट्रीट करना है और ओवर ऑब्सेस नहीं करना है. जब हार्मोनल टेस्ट हो गए हैं, काफ़ी चीज़ें नॉर्मल है, उसके बावजूद भी घड़ी घड़ी एक्ने ट्रिगर कर रहा है, इसको आप कैसे एड्रेस करते हैं? सो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एक्चुअली स्पीकिंग ये सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होता है पेशेंट्स में. हम पेशेंट्स को देखते हैं, उनकी हिस्ट्री, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर मेकिंग अस थिंक कि ये शायद एक हार्मोनल कंपोनेंट है इसमें, और हम जब टेस्ट कराते हैं तो सब नॉर्मल होता है. और एक बहुत ही फ़नी बात है, बट पेशेंट्स कभी कभी डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं कि अरे हमारे टेस्ट तो नॉर्मल आ गए, तो मतलब हमें तो पता नहीं चला कि ये क्यों हुआ है, या फिर हमारे पैसे वेस्ट हो गए क्योंकि हमारे टेस्ट नॉर्मल आ गए, कुछ निकला ही नहीं टेस्ट में, आपने फालतू में टेस्ट करने को बोला था. सो जब हम हार्मोन टेस्ट करा रहे हैं वो एक है टू रूल आउट
अ लॉट ऑफ अदर हार्मोनल कॉजेज जिनके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स हैं. अगर आपका थायराइड ठीक नहीं है, आपको प्रोलैक्टिन लेवल ठीक नहीं है, आपका कॉर्टिसोल ठीक नहीं है, तो उनको हमें ट्रीट करना है, उनके लिए अलग मेडिकेशंस हैं. बट काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें रिपोर्ट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल आती हैं. सो उसमें मैं समझाना चाहूँगी कि सिर्फ हार्मोन का एक्सेस होना इज़ नॉट द प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू एक्ने. कुछ लोगों में नॉर्मल लेवल्स ऑफ हार्मोन की सेंसिटिविटी, रिसेप्टर सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, विच मीन्स इफ़ एक्स अमाउंट ऑफ हार्मोन इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल, वो आप में नॉर्मल हो सकता है और आपको एक्ने नहीं है, पर वो मेरे में नॉर्मल है सेम लेवल, बट वो मेरे में एक्ने कॉज कर रहा है बिकॉज आई एम मोर सेंसिटिव टू दोज नॉर्मल लेवल्स ऑफ हार्मोन एज वेल. इसी डायरेक्शन में हम जो रिसेप्टर सेंसिटिविटी कम करने के लिए जो मेडिकेशंस देते हैं वो देते हैं. सो इट डज़ नॉट मीन कि अगर हार्मोन्स एक्सेस में नहीं हैं तो हार्मोनल कॉज नहीं है. हार्मोनल, it is still a hormonal cause, but now we have understood that it is a receptor sensitivity problem. सेकेंडली, जो प्री मेंस्ट्रुअल फ्लेयर्स होते हैं या पीरियड्स के अराउंड जो फ्लेयर्स होते हैं पेशेंट्स में, उसमें हमारा जब हमारे हार्मोन्स क्रैश होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्रैश होता है, तब जो वो नॉर्मल लेवल्स ऑफ एंड्रोजन रह जाता है, दैट ऑल्सो ट्रिगर्स एक्ने. सो वी हैव टू, दैट इज़ वाई इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्ने कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड अगर हमने टेस्ट कराया वो नॉर्मल आए, दैट इज़, इट्स नॉट दैट हमें पता नहीं चला उससे कुछ. इट क्लियरली टोल्ड अस किस डायरेक्शन में हमें नहीं जाना है और किस डायरेक्शन में हमें जाना है. एआई की दुनिया में क्या हम फ्यूचर में एक फ़ोन देखकर अपनी स्किन का प्रॉपर डायग्नोसिस बना पाएंगे? सो आई थिंक कि एआई में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड हो सकता है एट सम पॉइंट वी रीच देयर. करंटली एआई इस स्टेज पे है दैट 90% इट कैन टेल यू कि ये जो आपका स्किन लीजन है वो एक्ने है या एक्जिमा है या फिर अर्टिकेरिया है. वो 90% एक्यूरेसी से बता सकता है. जो सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है दैट इज़ इन डिटेक्टिंग स्किन कैंसर्स एंड दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग, इट्स अ बिग लीप. थोड़ा सा इसमें एक, बिकॉज in the world of AI, everyone wants to use this fluff word as well. So there's some issues with it as well, which are something जो हो सकता है later on sort out हो जाएं, which is when it comes to subjectivity. For example, कोई भी data set होता है, वो dermatologist in skin care, dermatologist will validate it कि ये acne है, ये कितना severe है, 30%, 40%, things like improvement, progress, they are very subjective. जो आपको 30% लगता है वो शायद मुझे 20% लगता है. So when two dermatologists cannot agree on something as subjective as this, तो हम train कैसे करेंगे AI को? So ये एक challenge है, but definitely there are ways to address this. दूसरा, as of now, most of the training of AI has been done on Caucasian skin. सो इंडियन स्किन पे जिस तरीके से लीजन्स दिखते हैं, जिस कलर के दिखते हैं, वो बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न स्किन. सो इंडिया स्पेसिफिकली इज़ नाउ डूइंग अ लॉट मोर इन टर्म्स ऑफ बीइंग एबल टू डायग्नोज डिजीजेज यूजिंग AI. बट हैविंग सेड दैट, फ़ोन पे हम स्किन केयर डिजीज़ डायग्नोज कर पाएंगे. अब जो एप्स जो अभी ये कर रही हैं, दे आर डूइंग इट ऑन वेरी नॉन वैलिडेटेड सेट्स. अ लॉट ऑफ टाइम्स देर इज़ अ डर्माटोलॉजिस्ट, सो दीज आर ऑल दीज वेलनेस एप्स जो AI यूज़ कर रही हैं सो दैट यू फील दैट यू आर गेटिंग सम वेरी हाई टेक केयर. सो इट्स स्टिल नॉट रीच दैट स्टेज, बट वेयर इट विल एक्चुअली रीच एंड वेयर आई सी द गोल ऑफ दिस विल नॉट बी दैट आप घर पे बैठ के अपने स्किन इशू डायग्नोस एंड ट्रीट कर रहे हैं, बट where it gives you a little bit of guidance into when it is time to see a dermatologist. So triaging में भी इसका रोल काफ़ी ज़्यादा रहेगा. कोई पेशेंट आपके पास आया और वो थक चुका है या थक चुकी है, एक ट्रीटमेंट करा के एक्ने की 8-10 साल हो गए उसको करवाते हुए, लेकिन शी दे वेरी टायर्ड. फंक्शनल डर्मेटोलॉजी यहाँ पर क्या रोल प्ले करेगी लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, और क्या ऐसे चेंजेस हैं जो आप करेंगे फॉर दैट पेशेंट टू स्टार्ट ट्रस्टिंग यू अगेन? सो जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो काफ़ी सालों से एक्ने का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उनको
बार बार एक्ने वापस आ रहा है और दे आर नॉट हैप्पी विद दैट ट्रीटमेंट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ 2 रीजंस. वन इज़ दैट या तो वो खुद कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं स्किन केयर के साथ, एंड इट इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि एक्ने एक ऐसा इशू है जो हमारी डे टू डे को इफ़ेक्ट करता है. हमें रोज़ अपने को मिरर में देखना है. वी हैव टू फेस आवर वर्क प्लेस, वी हैव टू फेस सोसाइटी, पीपल विल मेक कमेंट्स. तो वो डेस्परेट हो जाते हैं एंड दे विल हियर फ्रॉम पीपल, इस डॉक्टर को ट्राई कर लो. सो दे आर डर्मैट हॉपिंग. सो every 2 to 3 weeks or every month or every 2 months they are looking for another dermatologist जो कुछ नया कर देगा. The truth is that सारे dermatologists बिल्कुल सही approach follow कर रहे हैं. What is sometimes lacking is that patient उतना patient नहीं होता है, which I understand. But वो चीज़ें हम consultation में अगर उनको समझाएं, and अगर patient खुद भी confident है in their dermatologist and they stick to their dermatologist no matter who it is, they will definitely see results. Because approach चाहे कोई भी हो, medicines चाहे कोई भी apply, पहले कोई दे रहे हैं फिर दूसरी दे रहे हैं, पहले कोई क्लिंडामाइसिन देगा, बाद में कोई बेंजोइल पेरोक्साइड देगा, और प्रिस्क्रिप्शंस चेंज करने से और बहुत सारी मेडिसिन कलेक्ट करने से एक्ने ठीक नहीं होगा. एक्ने ठीक होगा कंसिस्टेंसी से. सो दैट इज़ वन रीज़न. दूसरा है कि हमने जो ड्राइवर्स ऑफ एक्ने हैं उनको हमने एड्रेस नहीं करा है. हो सकता है पेशेंट्स को सिर्फ एक प्रिस्क्रिप्शन दिया गया हो जिसमें दवाइयाँ लिखी गई हो, उनको बोल दिया गया हो आप 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में आना और हम दवाइयाँ बदलेंगे. तो वहाँ पे जब हम कोर इश्यूज़ नहीं एड्रेस कर रहे हैं, दिस इज़ वेयर फंक्शनल डर्मेटोलॉजी कम्स इन. So functional dermatology is not different from dermatology. It is only an add-on approach to the current dermatology practice where we are trying to address the why of acne. So in that case, अगर patient में हम patterns, and ये तभी हो सकता है जब हम, and in functional dermatology for example, मेरी consultation 60 to 90 minutes की होती है, because that is the amount of time I need जो मैं patient से पूछ सकूँ कि what are their stress levels, why they are stressed, or what are the sources of their stress, to understand the patient as a whole, to understand their diet, to read their food diary, to actually point out where we can make small changes जो वो कर सकें. उनके exercise routine क्या है for example. कुछ patients सोचते हैं कि या तो 1 घंटे जिम करेंगे या कोई जिम नहीं करेंगे, और वो मोटिवेशन में ही वहाँ पे रुक जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं. एंड सो हमें एक हेल्थ कोचिंग साथ में देनी होती है. सो व्हेन वी आर एज फंक्शनल डर्मेटोलॉजिस्ट, आई हैंड होल्ड माई पेशेंट्स, आई एक्ट एज देयर हेल्थ कोच टू हेल्प देम navigate all of the advice that we've given them, instead of just making a small note that stress कम लो, ठीक खाना खाओ, exercise करो, to guide them in the right direction, whether it is through referrals or it is through guided resources that we can offer them. ये game changer इसीलिए है and ये need of the hour है, because यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं कि पेशेंट्स अपने एक्ने को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये तो जाने नहीं वाले हैं. मैंने इतनी रील्स रिसेंटली देखी हैं अबाउट एक्चुअली द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रस्ट जो हो चुका है डर्मेटोलॉजिस्ट पे, कि हम तो कि डॉक्टर हर डर्मेटोलॉजिस्ट यही कहेगा. आई रिसेंटली सॉ रील जिसमें एक कंटेंट क्रिएटर ने बोला दैट मैं बताती हूँ एक्ने के लिए क्या करना है, एक्ने के लिए, और उसने अपना पूरा प्रिस्क्रिप्शन सुना दिया कि मैं 4 डर्मेट्स पे जा चुकी हूँ, सब ने इसी को मिक्स करके मुझे बता दिया है, तो यही एक्ने का ट्रीटमेंट है, डोंट वेस्ट योर मनी, डोंट गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट. सो दिस इज़ सो डेंजरस, बिकॉज आपने एक्ने जो इतना कॉम्प्लेक्स इशू है उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया है, बिकॉज यू आर थिंकिंग कि डर्मेटोलॉजिस्ट तो सिर्फ ये 4 दवाइयाँ लिख के देते हैं, उसी को घुमा फिरा के देते हैं. बट दैट्स नॉट द ट्रूथ. द ट्रूथ इज़ दैट देयर इज़ नो डर्मेटोलॉजिस्ट जो नहीं बता रहा होगा पेशेंट को कि you need to manage your stress levels, you need to take care of your lifestyle. It is just that in functional dermatology, I can actually be there to guide them through that next step. वरना patients कभी मैंने I've heard from my friends, कोई patients आके कहते हैं that डॉक्टर ने क्या बोल दिया, weight loss कर लो, मतलब तो क्या, मतलब उसके आगे मैं करूँ क्या और मैं जाऊँ कहाँ.
मैं कौन सा न्यूट्रिशन प्लान फॉलो करूँ, मैं किस डाइटिशियन को दिखाऊँ. स्ट्रेस लेवल्स हैं तो हैं, मेरा जॉब है तो मेरे स्ट्रेस लेवल्स हैं, बट इट डज़ नॉट, समटाइम्स रिड्यूसिंग स्ट्रेस लेवल्स डजंट मीन कि आप जॉब छोड़ दें. Although it could make a big change sometimes in people's lives, being in a toxic relationship or being in a toxic job. But it's about small changes जो हम उनको help navigate कर सकते हैं. And that can only happen in a functional dermatology practice, because the practice is designed in a way that I will be seeing less amount of patients, but I will be giving them more of my time. आज की डेट में डर्मैट्स अपने बहुत सारे स्किन केयर ब्रांड्स भी रिलीज़ कर रहे हैं जो और कंफ्यूज करते हैं पेशेंट्स को. बिकॉज कोई पर्टिकुलर डर्मैट है, उन्होंने 10 तरीके की क्रीम्स बना ली. ये इसका तात्पर्य क्या है? इज़ दिस ओनली बिकॉज इट इज़ अ बिजनेस दैट पीपल आर एक्सपेंडिंग इनटू कि 10 डर्मैट्स हैं, 10 में से 5 डर्मैट्स आज की डेट में अपनी स्किन केयर की रेंज निकाल रहे हैं. सो उसका थॉट प्रोसेस क्या है? पेशेंट्स और कंफ्यूज हो रहे हैं. So I feel on the other hand that patients क्योंकि already इतने confused हैं, they need a trustworthy figure who they already trust or who they consider as an authority in skincare to guide them on using the best products. So अगर एक 12th पास पर्सन या MBA पर्सन एक स्किन केयर कंपनी खोल सकता है, सो वाई नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट हु इज़ एक्चुअली trained in the right skincare? They know the pain points of the problem of the patients. They know patients को texture में क्या problem आती है. They know कि side effects क्या होते हैं. They know कि interactions क्या होता है. And dermatologists, as long as they are working with the formulator to create those skincare products, then why not? And when it comes to क्या ये सिर्फ एक business है, so I think all of us have to live. We all are growing in our lives. So why should dermatologists not do business? इसमें अगर 500 डर्मैट्स हैं और उसमें से 200 डर्मैट्स अपने ब्रांड निकाल रहे हैं, किसी की अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्ने टू रिजॉल्व समथिंग एल्स है, किसी की कुछ और है, तो ये कैसे, हाउ डज अ पेशेंट नो दैट दिस इज़ द बेस्ट ब्रांड फॉर ट्रीटिंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन की शायद टांग टूटी हुई हो सकता है कि वो नॉर्थ इंडिया में अवेलेबल है, साउथ इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है. इसका कैसे, मतलब हाउ वुड दिस, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस? I think it's already happening because a lot of dermatologists are also getting funding for their skincare range, for example. So I think that dermatologists, when they tie up with the, because सिर्फ एक dermatologist को अपने products all over India पहुँचाना on their own is impossible. That is not their core focus. They have to sit and see patients, nor is their expertise. So if they tie up with the right kind of people, they can definitely reach the country, and why not even abroad? Because even abroad, most of the best skincare products are actually dermatologist formulated. So, and when it comes to patients कि वो confuse होंगे, I would say right now 1 million products हैं. अगर हमारे पास 200 dermatologists हैं जो अपने products बना रहे हैं, तो जिस डर्मेटोलॉजिस्ट को आप ट्रस्ट करते हैं, जिस डर्मेटोलॉजिस्ट पे आप बिलीफ रखते हैं, बिकॉज आई बिलीव दैट देयर इज़ नो डर्मेटोलॉजिस्ट हु विल फॉर्मुलेट अ प्रोडक्ट with the intent of purely making money as compared to probably what the big giants are doing. So, and I've seen a lot of dermatologists even consider कि हम products बनाएं, and their reasoning behind it is because patients are so confused. So they feel कि ये product है जो मैंने किसी formulator के साथ बनाया है और मैं इसको trust करती हूँ, क्योंकि और क्या करता हूँ कि मुझे पता है exactly which patient will benefit from this. I am sure of the quality standards that have gone into making this product. That confidence that a dermatologist will be able to prescribe that product is next level. What do you think is a defined future to sort this? To sort? The kind of influence that they are getting from those reels? Is for more dermatologists to get involved in taking a step further in... On social as well. On social as well. So if you don't have, if some and dermatologists are extremely busy, they don't have, it is actually impossible to, in a very busy practice where you also have to do procedures, it's extremely difficult to put in that amount of time in a single consultation, which is where social media has done so well, because जो हम एक consult में नहीं बता पाते हैं, if we are making a reel on it and it's reaching 1 million people, then I think we've used social media in the best way possible. So
if not in the practice, but even on social media, the actual experts in acne talk more about how, or tools, provide tools to patients for taking care of their acne. In my practice, if I tell a patient that आप dairy छोड़ के देखो, if it is a trigger for you or not, and it is a very big thing to say to patients, and I'm practicing in Haryana where milk is absolutely unimaginable for someone to leave. So if you tell a patient that you need to cut down on your milk or your dairy products and let's see how that does for your acne, then I am not stopping it at that. I am sending my patients clean brand recommendations, because what I've also seen is, and I actually saw this with myself personally, when I switched to almond milk, I tried to search for clean almond milk brands online. There was, I would say, one brand that I found which did not have stabilizers and emulsifiers. If something as simple as what we consider a part of our daily diet, which is milk, which is we use in our teas and coffees and everything, is going to contain these ingredients which are going to damage your hormones, which are going to damage your health, your gut, if they are present, and if that's what the patient is going back to, what's the point? इससे अच्छा आप dairy ले लेते. So guiding the patient beyond just telling them the 4 things or 5 things that ये अपने आप संभालो आप, because वो हमारा, and because as and this goes for any medical specialty, super specialists cannot extend themselves, but I have chosen to do that because that's where I found कि मैं पेशेंट्स पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हूँ. एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस एज वेल. मैंने अब तक रियलाइज़ नहीं किया था, बट जब मैं कंसल्टेशंस करती थी, आई थिंक मैं 5 मिनट में दवाई लिखती थी, बट मैं 15 मिनट या जितना भी टाइम बचा होता था उसमें एक्ने में सिर्फ उनको ये समझाती थी कि ये प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ 20% पार्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट है. सो व्हेन आई डिड दैट आई रियलाइज कि मैं जितना कर सकती थी, समटाइम्स आई वुड टेल देम मैं आपको लिंक भेज दूंगी, इफ़ आई वुड टेल देम दैट ट्राई टू टेक लेस स्ट्रेस, आप थोड़ा सा मेडिटेट क्या करो, दे वुड से मुझे नहीं आता मेडिटेट करना. It's beyond my scope to tell them those things, but I educated myself in those things. I have developed resources to help patients actually include mindfulness into their life or small practices into their lives which suit them. So the approach of functional dermatology is not to tell the patient what to do. If you are my patient, I will not tell you कल से 15 मिनट वॉक पे जाओ. I will not tell you that. I will sit with you. I will give the power to you. I will tell you, मैं आपको समझा चुकी हूँ कि हमारे लिए एक्सरसाइज करना या स्ट्रेस कम लेना क्यों ज़रूरी है एक्ने के ट्रीटमेंट में. अब आप बताइए आप कैसे कर सकते हैं इसको. यू में से बट मेरे पास टाइम ही नहीं है जिम जाने का. सो ठीक है, लेट्स मेक स्मॉल मेजरेबल अटेनेबल गोल्स that you can be accountable for as well, because the power is with you. आप खुद ही लिखिए. I literally sit down with the patient with a form and I tell them आप लिखो कि आप कल से या परसों से और कब से स्टार्ट करोगे आप. Once you define it, तो पेशेंट को सडनली जो इतना पावरलेस फील कर चुका होता है इस टाइम तक, आफ्टर विजिटिंग so many doctors and feeling that clueless, and then eventually falling for these marketing traps, they suddenly feel, oh, the power is with me. I have known this all my life. मैंने कुछ नई बात नहीं बताई होती है उनको. If they have visited 10 dermats, all 10 have told them about these triggers for acne. But if I can sit with them and actually plan it for them about how they approach it, to guide them through it, to coach them in their health plan, to have a ecosystem for them, whether it is through health coaches or it is through psychologists or mental health experts or through allied specialties or through, so to create an ecosystem for the acne patient, that I come here and I am taken care of as a person. I am not taken care of as just my face. I've learned from my mistakes, because मैंने अपनी practice में I had met a patient about 6-7 times, and somehow मैंने उससे कभी पूछा नहीं था कि
आपका पेट ठीक रहता है. बिकॉज इन आर एक्ने कंसल्टेशन समहाउ हमें तो नहीं सिखाया गया ये पूछना. एंड again, there is no clear evidence for this. But now that I've started asking my patients, I realize that there is so many patients, I would say literally 40 to 50% patients who actually have a gut issue. And there could be multiple reasons which are still being, studied about what exactly is the connection. But a very simplistic way of looking at it is, if suppose somebody has a gut problem, because most of us Indians especially, हम gut problem को बहुत ignore करते हैं. मेरे को bloating तो रहती है, मुझे तो acidity रहती है, मैं तो pantoprazole खाता ही रहता हूँ. So हम उसको एक normalize कर देते हैं कि मेरा खाना बाहर हो गया था इसीलिए हो रही होगी. तो actually वो अपने gut issues भी बहुत, they're not taking it in a real way because no one's seeing those. No one is seeing whether you're constipated or you have diarrhea, but what they're seeing is your skin. So if we are able to address and ask more questions, and it's not only gut, it's about getting into all of these causes that are actually triggering the hormonal issues, or it could be something as simple as nutritional deficiencies. अगर आपको irritable bowel syndrome है, जिसका जो patients में हो सकता है, जिनको काफ़ी common है ये issue, they are not absorbing the nutrients in the right manner. और ये अगर अनडायग्नोज जा रहा है, दे आर नॉट अब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स व्हिच मे बी नीडेड टू फिक्स योर एक्ने. मैं आपको कितने भी सप्लीमेंट्स देती रहूँ, इफ़ योर गट इज़ नॉट रेडी टू अब्जॉर्ब देम, यू कैन बी ऑन दिस साइकिल फॉर एवर. आप आयरन टैबलेट्स खाते रहेंगे, आपका हेयर फॉल ठीक ही नहीं होगा, बिकॉज आयरन इज़ नॉट बीइंग अब्जॉर्ब्ड. सो व्हेन वी गेट इनटू एग्जैक्टली व्हाट द पेशेंट इज़ डूइंग, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, 24 घंटे में वो क्या करते हैं, most of the issues actually the patterns evolve from there. कुछ इमोशनल फैक्टर्स जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं अपनी ओपीडी में, जहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आप दें जहाँ पे एक्ने की जर्नी उनके लिए इतना इमोशनली मेंटल इम्बैलेंस क्रिएट कर चुकी है जो आपने ठीक किया, उसके बारे में भी कुछ बताएं. स्ट्रेस और एक्ने का एक बहुत बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप होता है. स्ट्रेस से एक्ने होता है और एक्ने से स्ट्रेस होता है. एंड मोस्ट पेशेंट्स इसी लूप में फंसे रहते हैं. सो दैट इज़ वेयर आई ट्राई कि मैं इस लूप को किसी तरह तोड़ पाऊँ. व्हेन यू टॉक अबाउट एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, these are conditions which are best treated by a mental health expert. So I would not foray into it in a lot of patients. Having said that, patients के लिए अगर आप एज अ डॉक्टर उनको वैलिडेट करते हो, आप उनको नॉन जजमेंटल वे पे फॉर जहाँ पे भी उन्होंने गलतियाँ करी होंगी, चाहे उन्होंने ट्रीटमेंट को छोड़ा होगा, कुछ गलत इस्तेमाल करा होगा, अगर हम उसको जज ना करके या डांट के ना, अगर हम उनको एक वैलिडेशन दें, बिकॉज दीज पेशेंट्स हैव बिन सॉर्ट ऑफ फील दैट कोई नहीं है जो उनकी प्रॉब्लम समझ रहा है. एक्ने इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग dermatological conditions because this, matlab, I have seen this in a teenage patient. In fact, she had come with her mother, और वो patient, उसकी मम्मी मेरे consultation में वहाँ पे she broke down, and the child was not able to, मेरे से आंखें नहीं मिला पा रही थी वो, because वो ना पूरे कंसल्टेशन में उसने मुझसे एक वर्ड तक नहीं बोला. एंड बिकॉज वो इतना थक चुके थे विथ स्ट्रगलिंग विथ सिवियर एक्ने, दैट द मदर वॉज कंसर्न्ड कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इसको एक्ने है, पर ये घर से बाहर नहीं निकलती है, इसके ये दोस्त नहीं बनाती है, ये स्कूल जाने से कतराती है, उसको रोज़ सुबह मिरर में देखती है, वो पूरे टाइम फ़ोन पे ढूंढती रहती है कोई सोल्यूशन, कभी वो गलत क्रीम्स लगा देती है, फिर हमें डॉक्टर पे जाना पड़ता है क्योंकि उसने कुछ ट्राई कर लिया होता है ऐसा जो उसको लगा था वायरल था, एंड इट कॉज्ड अ साइड इफ़ेक्ट. एंड उस टाइम पे एक्ने बहुत छोटा इशू हो जाता है. उस टाइम पे द मदर वॉज कंसर्न्ड कि मेरी बेटी को क्या हो गया है, वो नहीं है जो वो पहले थी. जो हमारा यंग एज होता है, दिस इज़ द टाइम टू लिव, दिस इज़ द टाइम टू गो आउट, मेक फ्रेंड्स, इन्जॉय, अपनी हॉबीज़ करें. और उस एज पे स्पेशली जब एक्ने
इतना ओवरवेलम कर देता है किसी पेशेंट को. फॉर देम इट कैन गेट, it can actually border on being much bigger than acne or the systemic issues they may be facing. So at that point I feel that if the patient is open to it, I give as much of my time and expertise to them as I can, validating them so that वो वापस जब जाएं they don't feel कि एक और दवाई ट्राई करनी थी या सिर्फ ये ट्राई करके देखो और उससे ठीक हो जाएगा. वो अंडरस्टैंड करें कि क्या प्रॉब्लम है. एंड देन आई रियली हाईली इनकरेज देम टू सीक मेंटल हेल्थ expert advice to get them through this. And India is still growing in terms of accepting help from the mental health care industry. अभी भी कुछ पेशेंट्स को लगता है कि कोई और कैसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. बट हैविंग सेड दिस फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, आई फील दैट if it's needed, you need to take therapy. If it works for you, give it a shot. If you are at a stage where you feel that you cannot manage your life, चाहे वो एक एक्ने है जो आपको इफेक्ट कर रहा है, और इट इज़ सम अदर कंसर्न, इट्स अ जॉब प्रेशर, इट इज़ अ रिलेशनशिप प्रेशर, बिकॉज द इम्पैक्ट दैट स्ट्रेस कैन हैव ऑन योर लाइफ is on your health is actually immense. So in this patient actually over a period of few months, I think एक बार था जब वो around अपने कुछ consultations के बाद जब वापस आए, and for the first time in my life मैंने उसकी smile देखी थी. And I think उसकी मम्मी को भी उतनी खुशी नहीं होगी वो smile देख के जितनी मुझे हुई थी, because for me I had forgotten to treat her acne. I wanted her to just get better. Because कोई भी क्रीम लगाते रहो, कुछ भी करते रहो, it's not about just the effects of stress. It's about, as dermatologists, we want to heal the patient. And healing the patient sometimes is not just about making them beautiful or making them flawless. It is about healing them as a whole person. And if you can contribute even this much in doing that to a patient, then I think your whole purpose of being a doctor is solved. सवाल बहुत हैं. एक्ने बहुत इवॉल्विंग सब्जेक्ट है. कई सालों से मैं पढ़ रहा हूँ, कई सालों से मैं ये भी देख रहा हूँ दैट एवरी ईयर देयर इज़ अ न्यू वे ऑफ हाउ द अप्रोच टूवर्ड्स ट्रीटिंग एक्ने चेंजेस, ऑल्दो द बेसलाइन remains the same. But having said that, in the new age era, understanding acne from you has been amazing, and I'm really grateful that you made it for the show today. Thank you so much for having me. And I hope we talk again around other aspects of dermatology. Before we end, we have a tradition where we have a rapid fire with our guests so that we can capture the first thought in their mind. Do you think you're ready for it? Yeah, as much as I can be. Okay, let's begin. एक ingredient जो बिल्कुल overhyped है. Niacinamide. एक product category जो आप कभी recommend नहीं करते. Face scrubs. Dairy या gluten acne के लिए ज़्यादा खराब क्या है? Dairy. सबसे बड़ी mistake जो ज़्यादातर acne patients करते हैं? Overuse of harsh exfoliants. एक food item जो आप पहले दिन ही बंद करवा देते हैं? Junk food. Retinol effective और just marketing hype? Retinol is very effective. एक lab test जो हर acne patient को करवाना चाहिए? I would not give one lab test to any acne patient. It has to be, I cannot answer this in a rapid fire. Needs a longer answer. Skincare influencers helpful or harmful? I actually have a very interesting view on this. I feel that I personally have also learnt a lot from skincare influencers. The ones, and there are very few of them, the ones who actually do a lot of our homework for us. As dermatologists, हमारे पास नहीं टाइम होता है कि जो नया कोरियन स्किन केयर आया है या कोई नया D2C ब्रांड आया है, हम उसमें समझें कि क्या टेक्सचर चिपचिप है कि नहीं, क्या वो समर में वर्क करेगा वो कि काम नहीं, करके दे देते हैं, क्या उनकी ऑयली स्किन को सूट करा था कि नहीं. सो जो ट्रस्टेड हैं, द वंस दैट, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो नॉन पेड ओपिनियंस देते हैं, तो ऐसे 2-3 इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एक्चुअली आई फील कि नॉट जस्ट यूजफुल, आई एक्चुअली लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. क्लियर स्किन के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है? 7 घंटे की नींद या बेस्ट स्किन क्या है? 7 घंटे की नींद. आई वुड से
इफ़ नीडेड फॉर यू 8 से 10 घंटे की नींद. एक एडवाइस जो हर डर्मेटोलॉजिस्ट को पहले दिन पेशेंट को देनी चाहिए. Be patient and be consistent. All right, thank you so much for the rapid fire. I'm so grateful that we wrapped up, but I just hope that we talk again. And I learned a lot today. Thank you so much. It was really a pleasure having a conversation with you. I think it brought up a lot of reasons behind why I do what I do. Thank you so much. इस एपिसोड का सबसे बड़ा लेसन यही है कि जब तक आप रूट कॉज पर काम नहीं करेंगे तब तक स्किन पर महंगे प्रोडक्ट्स लगाना बिल्कुल बिल्कुल बेकार है. डॉक्टर सोनल को आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और अगर ये एपिसोड आपके काम आया तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त या फैमिली मेम्बर तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो सालों से स्ट्रगल से गुजर रहे हैं. मिलते हैं अगले एक और नए शानदार एपिसोड में. जय हिंद.